Yes. I hope every one of you are doing fine. Good afternoon as well. So, we were looking into understanding elementary shapes. So, previously in this particular lecture, we were understanding concepts like median, perpendicular bisector, angle bisector, altitude. Then we have also come to know about both of these concepts like triangle and its classification. Then we have also come to know about. Yes, good afternoon, all. So we have also come to know about similarity and congruency. Both of these concepts in congruency, we have seen that how these are like basic properties of congruency, which if you have to prove that whether two figures are congruent or not, we will look into these like five categories. Side, we will look into. Then we can look into side, angle, side, like side, and in between one angle and then another side. Thereafter angle, once one angle will look into, then a side, and then another angle will look into, like in this particular figure you can see. Similarly this one as well. So in the next one we can look into both angles and the adjacent side of it. Okay. So similarly, and there was another factor like right angle, right hand side, which is basically आपका एक right angle हो रहेंगे, or there will be two sides which will be equal to each other of two triangles basically. So all of these things we were looking into. So today we will move forward. Anyone has any doubt or any questions, or anyone wants to mention anything, you can. Okay. Parallelogram. Yeah, okay. Okay. Thank you, Tanu. And whoever knows the Hindi translation of these terminologies, kindly you can put down in the chat box so that it's helpful for everyone. Okay. So in quadrilateral, we were looking into few shapes and sizes in quadrilateral. So in quadrilateral, basic properties are, of course, there will be four sides. Then there will be four angles. Then we will look into these things today in more with more detail. Okay. So okay, I hope altitude was I hope like it was clear with everyone. Altitude was basically a sort of height which is which is also perpendicular to the particular figure. Okay. Then we were looking into angle bisector. Basically कोई भी angle bisector वही होता है, एक line जो कि bisect कर रहा है एक angle को. जैसे ये वाला B angle है, this is the angle B, this is angle C and A respectively. So it will equally divide this particular angle. तो ये जो angle अभी इनका अंदर का जो angle बन जाता है वो half हो जाता है. So if this is angle B, so अंदर का जो angle बनेगा वो half of this particular angle बन जाता है. So you can consider it to be small b. So something like that. Okay. So angle bisector basically bisects. Bisect मतलब divide. मतलब दोनों को एक दूसरे से वो करते रहे, अलग करते रहे. Okay. Then perpendicular bisector we have seen कि एक वैसा line जो कि opposite side में fall करता है. It falls into the opposite side. वो एक वो खुद angle bisector भी आप बोल सकते हो. Okay. एंड सिमिलर वे में जो साइड में वो फॉल करता है, द लाइन विच फॉल्स इन द ऑपोजिट साइड. ओके. तो ये वाला जो फॉल करेगा दैट वुड बी अ मिड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. मतलब जो ऑपोजिट साइड रहेगा उस वो वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा. और जहां पे फॉल करता है ये जो फुटहिल होता है, जो हम लोग फुटहिल ऑफ ऑल्टीट्यूड पढ़ रहे थे ऑल्टीट्यूड पढ़ने के टाइम पे, तो ये जो फुट होता है, ठीक है, ये अगर आप बेस पकड़ लो किसी चीज का बेस, तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ये फुट हो गया मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट. तो ये वाले पॉइंट पे आपका राइट एंगल बनाता है. ठीक है. मतलब परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ थिंग. ओके. सो सिमिलर वे में वी सॉ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो इस पे हम लोग देख रहे थे कि ये अगर एक सर्कल के अंदर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वो सर्कमस्क्राइब करता है. बेसिकली एक सर्कल के अंदर परफेक्टली फिट कर जाता है. ठीक है. इजीली समझने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट वी वर सीइंग मीडियन. मीडियन कुछ नहीं, सिमिलर ही है, मतलब एक लाइन सेगमेंट ही है. ठीक है. लाइन सेगमेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि लाइन सेगमेंट का एक इनिशियल पॉइंट रहता है और एक एंडिंग पॉइंट भी रहता है. तो सिमिलर वे में ये एक लाइन सेगमेंट होगा जो कि ऑफ कोर्स इट विल जॉइन द वर्टिसेस. यहाँ पे बी ए सी सब हम लोग का वर्टिस था एक ट्राइंगल का. तो सिमिलर वे में दिस विल जॉइन द वर्टिसेस. एंड ये जो जॉइनिंग पॉइंट होगा, ये जॉइनिंग पॉइंट से जहां पे ऑपोजिट साइड के जो पॉइंट पे मीट करेगा,
मतलब ये वाला पॉइंट जो होता है, दिस वुड अगेन बी द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. अगर बी से स्टार्ट हो रहा है, बी वाला लाइक बी जो आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से अगर स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये जाके जहां पे फॉल करता है ए सी वाले पे, ये वाला ई जो पॉइंट है, ई वाला पॉइंट आपका मिड पॉइंट ऑफ ए सी होता है. ठीक है, तो सिमिलर वे में हम लोग लाइक प्रॉपर्टीज वगैरह देख रहे थे. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव सीन. एंड सिमिलर वे में ये अगर आपका इक्वली, मतलब ये जो ट्रायंगल्स भी होते हैं, दोज थिंग्स वी वर आल्सो सीइंग कि वी वर, इट वाज इक्वल एंड ऑल. सो वी मूव फॉरवर्ड विद फर्दर कॉन्सेप्ट्स. ओके, ग्रेट, थैंक यू तन्नु. So now some more important properties of quadrilateral पे आपका आ जाता है. पहले तो पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के जो टर्मिनोलॉजी है, पैरेलल और ओग्राम. ठीक है, ये जो पैरेलल टर्मिनोलॉजी है, ये आपका उसका फिगर का परफेक्ट डेफिनेशन भी हो जाता है, क्योंकि ये जो फिगर रहता है ये पैरेलल रहता है हर एक तरफ से. ठीक है, ओके, एक्सक्यूज माय ड्राइंग, आई विल जस्ट ट्राई टू. दिस इज अबाउट इट. तो ये जो फिगर होता है, दिस इज, ठीक है, we can consider something like this. Okay, so what will happen is in this particular quadrilateral, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये quadrilateral है, क्योंकि of course चार साइड है, चार एंगल्स है, and all of those properties it's satisfying, तो it's a quadrilateral. इनका जो opposite साइड रहता है, this is equal and parallel. ये और ये आपका equal है और parallel भी है. parallel मतलब जो दो कभी मीट नहीं करते, लाइक जो दो लाइंस, बेसिकली लाइन सेगमेंट या फिर लाइंस भी आप अगर कंसिडर कर रहे हो, वो लाइन जो कभी मीट नहीं कर पाएंगे. अगर इसको आप एक्सटेंड भी कर रहे हो, आगे जाके कहीं पे मीट नहीं करेंगे. ओके, if you are extending these two particular lines, and let's give it this names, okay, so that it's better understanding, for our better understanding. So if this A B C D, so ये A B और C D, if you extend this particular lines, if line segment, so this won't meet anywhere. फोर्सफुल मीट करवाएंगे तो फिर मीट करेगा, पर इन जनरल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये मीट नहीं कर सकता एक दूसरे से. ठीक है, सिमिलर वे में एडी और बीसी भी आप देख पा रहे हो. ये एडी और बीसी भी आपका मीट नहीं करता है. तो दिस आर द बेसिक पैरेलल के मतलब तो सबको पता ही होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज, ये दो साइड आपका इक्वल होता है, एंड सिमिलर वे में ये दो भी आपका इक्वल होगा. Okay, got it. So now what happens is, आपका further concepts पे क्या होता है कि ये वाला जो opposite sides होते हैं, they are congruent to each other. So congruency में हम लोगों ने देखा था कि वही आपका sides का जो मतलब आपका जो sides का जो length है वो congruent होगा एक दूसरे से. ठीक है, and similar way में आपका ये वाला consecutive जो angle होते हैं, that are supplementary. So we'll understand what is supplementary थोड़ी देर में. ठीक है, नाउ आई होप अप अंटिल नाउ इट्स ऑलमोस्ट क्लियर फॉर एवरीवन. मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ सो दैट इट्स अंडरस्टैंडेबल. दिस इज पैरेलल टू डीसी, एंड अगेन एडी इज पैरेलल टू आपका बीसी. ठीक है, नाउ you can also understand according to parallelogram के property. So this AB is equal to DC होगा. ठीक है, DC मतलब opposite जो है. और सिमिलर वे में आपका जो ये अच्छा AD तो बंद कर दिया मैंने. अच्छा AB, ओके, नाउ AD. ओके, सो AD इज आपका इक्वल टू दिस वन BC. Okay, this is about it. And now what happens is, ये जो sum of all the like sum of any two adjacent interior angle आप अगर पकड़ रहे हो, तो that would be equal to 180 degree. ठीक है, ये मतलब क्या होता है, आप अगर आप ये समझ पा रहे हो कि ये वाला एंगल्स हो रहा है, मतलब जो दो ये वर्टिसेस जो है इनका भी, तो ये वाला एक पॉइंट इसका एंगल बना रहा है, मतलब AD और AB, आपका AD और AB आपका एक एंगल बना रहा है विच इज एंगल ए. ठीक है, ये जो एंगल ए होता है और इसका जो एडजेसेंट एंगल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप डी भी कंसिडर कर सकते हो, बी भी कंसिडर कर सकते हो. तो इफ वी कंसिडर बी, क्योंकि वो ए बी, ठीक है, उसके हिसाब से, तो दिस विल बी इक्वल टू 180.
सिमिलर वे में आप ये भी समझ पा रहे हो कि सिमिलर वे में B प्लस C विल ऑल्सो बी 180, आपका C प्लस D विल ऑल्सो बी 180. सिमिलर वे में A और D, लाइक D और A जो है, अगर आप ये वाला लाइक एंटी क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट कर रहे हो तो ये वाला भी आपका 180 होगा. ठीक है, यही होता है प्रॉपर्टीज. और ये जो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बेसिकली क्या होता है, ये जो एंगल ए होगा विच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद एंगल सी. सिमिलर वे में आपका एंगल बी जो होता है विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद एंगल डी एज वेल. सो ये आपका बेसिक प्रॉपर्टीज है. आप ये फिगर देख के आप समझ पाओगे. आई होप इट्स विजिबल टू ऑल. या ओके, ग्रेट. ठीक है, और फर्दर कॉन्सेप्ट्स पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये जो डायगोनल बनाते हैं, तो डायगोनल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑपोजिट वर्टिसेस जो एक लाइन ये आपका कट कर रहा है. ठीक है, ये जो डायगोनल्स बनाते हैं, सो इन अ पैरेललोग्राम दीज आर नॉट इक्वल, बट ये होता है कि ये लोग बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे. तो आप समझ, तो ऑफ कोर्स ये डायग्राम से ही क्लियर है कि AC और ये जो DB है, AC और DB, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे और DB. ओके, पर ये दोनों आपका बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, बट इट बाइसेक्ट्स. ओके, सो सिमिलर वे में दिस, तो यहाँ पे अगर बाइसेक्ट कर रहा है कोई चीज और इसको हम लोग एक O पॉइंट पकड़ रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स द सेंटर एंड वी कैन कंसीडर इट एट OA, मतलब OP, जो भी नाम आप देना चाहते हो. ठीक है, O अगर एक पॉइंट पकड़ रहे तो ये वाला जो मिड पॉइंट होगा, तो OA, ठीक है, OA एंड OC विल ऑफ कोर्स इट विल बी इक्वल. ठीक है, और सिमिलर वे में OD और OB ये वाला पार्ट भी दोनों इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे से. तो वी कैन राइट इट एज OA इज इक्वल टू OC एंड आपका OB जो है इट इज अगेन इक्वल टू OD. ओके, और अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि दो पैरेललोग्राम के, ठीक है, और दो पैरेललोग्राम के सेम बेस है, मतलब ये वाला जो एक पैरेललोग्राम है और एक पैरेललोग्राम को हम लोग इसके ऊपर अगर सुपरसाइड कर दे रहे, let me change the color so that it's better understand के लिए. अगर ये वाला और एक पैरेललोग्राम को हम लोग इसके ऊपर ही मतलब प्लेस कर दे रहे, ठीक है, और ये इसका सेम बेस है, अब बेस इसको पकड़ लीजिए, तो अगर इसका सेम बेस है तो इनके बीचों बीच, लाइक इनके बिटवीन में जो सेम पैरेलल लाइंस भी होंगे एंड इट विल बी इक्वल इन एरिया एज वेल. ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू कॉन्ग्रुएंस का जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले के कॉन्सेप्ट ट्राइंगल के टाइम पे. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर फिगर और एक फिगर के साथ एकदम पर्टिकुलरली सुपरसाइड कर जा रहा है, मतलब एकदम पर्टिकुलरली उसका शेप कॉपी कर ले रहा है, तो इट वुड बी ऑफ कोर्स उनका एरिया पकड़ लीजिए या फिर उनका जो सेम उनका जो ऑपोजिट जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो सब सिमिलर ही होंगे. ठीक है, दिस इज अबाउट इट. नेक्स्ट इज आपका एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है आपका डायगोनल्स और आपके साइड्स के, मतलब साइड्स को लेके. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. ठीक है, फिर हम आई विल एक्सप्लेन इट. दिस वन AC का जो स्क्वायर है, AC आप समझ पा रहे हो, ये जो डायगोनल है इनका जो स्क्वायर होगा और BD का जो स्क्वायर होता है ये आपका होता है, ये जो सारे साइड्स है, फॉर एग्जांपल ये जो AB है, आप समझ पा रहे हो, AB स्क्वायर, और AB इज इक्वल टू DC एज वेल, राइट. सो DC का स्क्वायर प्लस आप ये वाला देख लीजिए, AD अगेन इज इक्वल टू आपका दिस वन AD, और ये वाला हो गया BC का स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ऑफ कोर्स कि 2AB का स्क्वायर, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्चुअली DC भी लिख सकते थे, 2AB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और या फिर 2DC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज दीज टू आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल है.
यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सिमिलर वे में एडी की जगह अगर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस वन टू, लाइक बीसी की जगह हम लोग एडी से रिप्लेस कर सकते हैं, दिस वन बीसी, तो अगेन दिस बिकम्स 2AD। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, जस्ट गिव, ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन ओनली कि ये जो आपका डायगोनल्स के स्क्वायर होंगे उनके जो सम है, ठीक है, ये आपका जो सम हो जाता है दैट बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। ये जो डायगोनल्स के सम है ये हो जाता है सम, मतलब उनके जो मतलब टोटल जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स है, मतलब ये जो साइड्स के जो स्क्वायर होंगे उनके सम के साथ इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसको 2 को बाहर लेके हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आई एम राइटिंग इट कहीं ओपन जगह में ताकि आप समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक ट्वाइस, क्योंकि ऑफ कोर्स 4 साइड्स है, ठीक है। तो ये तो इसके साथ इक्वल है और ये तो इसके साथ इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी 2 बार है और दिस वन, ओके, एडी का स्क्वायर। दिस इज अबाउट इट। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं और ये प्रॉपर्टी काफी टाइम हम लोगों के न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, सो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस टू रिमेम्बर कि पैरेललोग्राम के साइड्स के जो स्क्वायर होंगे, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स बेसिकली, ठीक है। ये जो ए बी स्क्वायर है, फिर बीसी डीसी स्क्वायर है, फिर बीसी स्क्वायर है, एडी स्क्वायर है, इन सब के जो सम होंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, मतलब इनके जो डायगोनल्स के स्क्वायर होंगे उनके इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। सो दिस इज अबाउट इट, वेरी इजी। आई होप अभी तक सबको क्लियर है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज, और आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर क्यों हम लोगों ने ये वाला डीसी को रिप्लेस किया है एबी से और एडी को क्यों बीसी से रिप्लेस, मतलब बीसी को क्यों एडी से रिप्लेस किया है। आई होप इट्स क्लियर। यस, ओके ओके, ग्रेट। कोई भी, मतलब अगर आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि डीसी को लाइक एबी को भी डीसी से आप रिप्लेस कर सकते थे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। तो ये वाला फॉर्मूला आपका 2 डीसी स्क्वायर प्लस आपका बीसी स्क्वायर भी बन सकते हैं, ओके। इट्स जस्ट द नेमिंग, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये वाला ही फॉर्मूला है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से न्यूमेरिकल जब करेंगे, मतलब सम जब करेंगे तब अंडरस्टैंडिंग अब बस समझ लीजिए कि क्या चीज होता है, उसके हिसाब से यू कैन अप्लाई इट। फर्दर आगे बढ़ते, तो रोम्बस पे, रोम्बस और रोम्बॉइड, तो किसी को पता है, लाइक इट्स वेरी इजी। सो रोम्बस और रोम्बॉइड में डिफरेंस क्या होता है, किसी को पता है? नाम तो मतलब एक ही टाइप का होता है कि रोम्बस रोम्बॉइड, तो डिफरेंस किसी को पता है? अच्छा, उसके पहले हम लोग एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं कि ये जो हम लोग पैरेललोग्राम पढ़े अभी, ये पैरेललोग्राम तो आपका क्वाड्रिलैटरल के पार्ट है, और ये हम लोग अभी जो नेक्स्ट के जो फिगर्स पढ़ेंगे विच इज रोम्बस, देन आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ठीक है, ये सारा आपका वही होंगे, मतलब क्वाड्रिलैटरल ही होंगे। पर क्या होता है ना कि ये जो रोम्बस है या फिर आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, ये सब आपका पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड दैट क्यों है, क्योंकि आपका क्योंकि ये सारे शेप्स जो है ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की भी फॉलो करते हैं, जो कि पैरेलल साइड्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं, तो हम लोग इन लोगों को भी मतलब इंक्लूड कर लेते हैं पैरेललोग्राम के काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन पे। तो अभी रोम्बस पे आ जाते हैं। तो रोम्बस पे कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड अ रोम्बॉइड? ओके, किसी ने लिखा है sides equal but at each angle is not 90 degree, okay, is rhombus, okay, 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 let's not kind of wait any longer, let's move with the explanation and all. So पहले rhomboid का जानते हैं। rhomboid का as in कुछ special
चीज, मतलब एक छोटा सा ही चीज है जो कि हम लोग अभी जान लेंगे, ठीक है? Just give me a second, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ। रोम्बॉइड का क्या होता है ना, इनका जो एडजेसेंट साइड होते हैं रोम्बॉइड का, ठीक है, इनका जो एडजेसेंट साइड है, ये जरूरत नहीं है कि ये इक्वल होंगे, अनइक्वल, ठीक है, लेंथ वाइज। सिमिलर वे में इनका जो एंगल्स होते हैं, इट इज नॉन राइट एंगल्ड, ठीक है, बस ये नॉन राइट एंगल्ड होते हैं, इतना ही है। और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, हमारे बॉडी में भी एक होता है, ओके, रोम्बस कंटेन साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, हाँ, ओके, तनु, या, तो रोम्बॉइड का एक इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी वाइज भी एक चीज है कि एक मसल होता है हमारे बॉडी में, विच इज टर्म्ड एज रोम्बॉइड मसल, जो कि एसोसिएट होता है आपका स्कैल्प्यूला, आई गेस, जो कि आपके बैक में, बैक, मतलब मैं बहुत खराब ड्राइंग पे हूँ, तो आई जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन कि रोम्बॉइड मसल, मतलब इससे आपको याद भी रह जाएगा कि क्या होता है। तो अगर आप बैक कंसिडर कर रहे हैं ह्यूमन के, ठीक है, ऐसा कुछ बैक, तो ये वाले ऊपर वाले जो आपका होता है ना, मतलब एक्सरसाइज करते वक्त, ये वाला थोड़ा सा, किसी के जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, ये रोम्बॉइड मसल थोड़ा सा स्कैल्प या ग्रुप ऑफ मसल्स इन द अपर बैक, राइट, ये अपर बैक लाइक एक्सरसाइज पे जो जिम जाते हैं, दे माइट नो कि अपर बैक के काफी मसल्स पे काम होता है, लाइक एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, अपर बॉडी पे जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ये रोम्बॉइड मसल्स बेसिकली आपका स्कैल्प्यूला के एसोसिएटेड है, तो स्कैल्प्यूलाज इधर कोई होता है मसल्स, ओके, सो दिस इज अबाउट इट। अभी हम लोग रोम्बस पे आ जाते हैं क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर। तो आई एम इरेजिंग दिस वन अभी। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट्स ऑफ कोर्स अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, this is a special parallelogram and all the sides are equal in a rhombus, all sides equal, ठीक है। अभी क्या होता है, ये जो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑफ कोर्स, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एज वेल। तो हम लोग एक बार रोम्बस के डायग्राम देख लेते हैं। तो रोम्बस में अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे, थोड़ा सा काइट की तरह भी दिखता है, पर ये चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सब काइट आपका रोम्बस नहीं होता है, ठीक है, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस इन शेप। I'll try to. Just give me a second, guys. ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ, मतलब कुछ ऐसे ऐसा दिखता है, तो ये वाला एक चीज होता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे, इस तरफ से देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस इज योर आई फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से आप देख रहे हो तो ये थोड़ा सा काइट की तरह दिखता है, पर अगेन व्हाट आई सेड वाज कि आपका हर एक काइट, मतलब एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस अगेन, बट शेप थोड़ा सा सिमिलर होता है। तो क्या होता है कि ये वाला, ओके, वी विल फर्स्ट नेम इट अगेन, ए बी सी एंड डी, दिस इज एन ओ पॉइंट, ठीक है। तो ये आप सब साइड इक्वल, मतलब आप this one is equal to BC, which is equal to CD, which is equal to DA, ठीक है।
अभी क्या होता है कि सम ऑफ द टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल सिमिलर, लाइक जो पैरेललोग्राम में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एडजेसेंट लाइक एंगल्स होते हैं उनका आपका इक्विवेलेंट लाइक उनका जो सम होगा वो आपका 180 होगा। ये प्लस है, ठीक है, ये ए है। सिमिलर वे में आपका दिस बी प्लस सी इज ऑल्सो 180। तो आप देख पा रहे हो क्यों इसको पैरेललोग्राम के अंदर आप बता सकते हो कि दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक सिमिलर स्पेशल सॉर्ट ऑफ लाइक पैरेललोग्राम, इसी वजह से क्योंकि काफी सारे प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। देन क्या होता है कि आपका जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो ऑपोजिट एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल यहाँ पे ए है और सी है, बी और डी है, तो ये जो ऑपोजिट ए विल बी इक्वल टू सी एंड ये जो बी होगा वो दैट विल बी इक्वल टू डी। सो दिस इज अबाउट इट। और एक चीज होता है कि ये जो डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट अ राइट एंगल, तो राइट एंगल सबने समझ लाइक जब हम लोग एंगल्स पढ़ रहे थे तब अक्यूट आइसोस लाइक अक्यूट फिर ऑब्ट्यूस फिर राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड ऑल वी वर लर्निंग। तो राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। अक्यूट 0 से 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री आपका राइट एंगल, और ऑब्ट्यूज तो पता है मतलब उससे ज्यादा जो भी होगा 90 से 180 तक जो भी एंगल्स है। तो ये सब आपके जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है ये आपका 180 डिग्री 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, मतलब राइट एंगल पे आपका बाइसेक्ट करता है। एंड ये जो फॉर्म होता है ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स भी फॉर्म करते हैं। तो सिमिलर वे में आप अगर ये फिगर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, दो द फिगर इज नॉट दैट ग्रेट, बट ये जो फिगर बन रहा है ये वाला जो आपका एक triangle here. Again, this is again a triangle. This is again a triangle, and this one is as well a triangle. So this A O D B O A O B B O C then C O D, ये सारे जो ट्रायंगल्स है ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल। पर ये कंसिडर लाइक ये नेसेसरी नहीं है कि सबका मैग्नीट्यूड वाइज बोथ ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल, बट देन ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक राइट एंगल रह ही रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स देन आपका ये जो होता है यहाँ से और कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि आपका ये जो एक ट्रायंगल होगा, दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड सिंस दिस विल बी 1/4 ऑफ द एंटायर थिंग। ये अगर एंटायर फिगर पकड़ रहे ए बी डी सी या फिर जो भी अगर लाइक क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ए डी सी बी, जो ये वाला जो पूरा फिगर है रोम्बस के, और ये जो छोटा छोटा जो हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया है, मतलब जो फॉर्म किया है ऑब्जर्वेशन से, सो ये आपका 1/4 ऑफ द एंटायर फिगर है। तो वी कैन कॉल दिस ट्रायंगल्स ए ओ बी, और आपका दिस ए बी ओ डी, देन योर सी ओ डी, एंड और एक ट्रायंगल कौन सा रह गया, सी ओ डी हो गया, ए ओ बी, बी ओ ओ नो बी ओ डी क्यों लिखा मैंने, छोटा सा मिस्टेक, ए ओ बी बी ओ सी होगा।
all of these are kind of 1/4 of the rhombus. मतलब 1/4 ऑफ द rhombus एज इन rhombus के एरिया वाइज अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ये 1/4 होते हैं, ठीक है। 1/4 मतलब 4 भाग में एक भाग आपका ये ले लिया, दिस वन AOB, फिर BOCB, CODB और AODB या फिर DOA, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। दिस इज अबाउट इट। और आपका और एक प्रॉपर्टी होता है कि सम अच्छा ओके गॉट इट। और एक होता है सिमिलर वे में जब हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे तो वी वर कंसिडरिंग जो आपका लाइक डायगोनल वाइज, ओके। तो यहाँ पे भी डायगोनल वाइज हम लोग कंसिडर करते हैं, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, अगेन सिमिलर टू पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि आपका ये वाला साइड AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD और AC, मतलब सॉरी AB BC CD और DA, ये वाला जो स्क्वायर होंगे, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू अगेन दिस AC का स्क्वायर और DB का स्क्वायर। तो दिस AC का स्क्वायर इज प्लस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस आपका DA स्क्वायर। सिमिलर वे में यहां से आप एक चीज लिख सकते हो कि क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि दिस वन AB इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, ये सारे साइड्स जो होते हैं दोज आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। तो यहाँ पे हम लोग सबको एक पर्टिकुलर साइड से रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली AD को, मतलब BC को हम लोग AD भी लिख सकते हैं क्योंकि दीज आर ऑल इक्वल, सो वी कैन सुपरसाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदरली। तो ये सब आपका बन जाता है 4 ऑफ सिमिलर साइड्स, लाइक 4 सिमिलर साइड्स के लेंथ, मतलब सिमिलर लेंथ के साइड्स बन जाते हैं ना, सिमिलर लेंथ के साइड्स बन जाते हैं। तो AB अगर आप सिमिलर, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सो दैट इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, सिमिलर लेंथ के साइड्स बन जाते हैं, सिमिलर लेंथ साइड्स। तो ये सब आपके आप AB से भी रिप्लेस कर सकते हो, BC से भी पूरे सबको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये 4 मतलब सबको प्लस करके आप सिमिलर वो कर सकते हो। तो दिस विल बी बेसिकली AC का जो स्क्वायर होता है, मतलब इनका जो डायगोनल्स के स्क्वायर होंगे, सम ऑफ द डायगोनल्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू टोटल जो सम है उनके स्क्वायर। दिस इज अबाउट इट। ये एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। नाउ we'll move forward with triangle. I hope this is clear. Like बहुत easy है। और ये वाला प्रॉपर्टी अगेन आपका यही वाला जो एंड वाला प्रॉपर्टी बताया, यही आपके लाइक सम्स में आते भी है PCS एग्जाम्स या फिर आपके सेंट्रल का एग्जाम पे भी, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी विच विल बी यूज्ड, बट वही चीज है, आपका नेमिंग आप जो भी आप कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए कि क्योंकि इनके सारे साइड्स इक्विवेलेंट, लाइक इनके सारे साइड्स इक्वल है, तो इसीलिए आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कोई भी एक पर्टिकुलर साइड से, मतलब रिप्लेस एज इन नेम वाइज यू कैन काइंड ऑफ पुट द एनी नेम। ये वाला AB को आप यू कैन, इट इज इक्वल टू BC, आपका सिमिलर वे में दिस BC इज इक्वल टू CD, आपका AB इज ऑल्सो इक्वल टू CD और AB इज ऑल्सो इक्वल टू AD। तो सब अपने अपने में इक्वल है, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर नेम को उसको वो मेंशन कर सकते हो, यू कैन सुपरसाइड इट इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सिमिलर वे में, क्योंकि ये स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पे आ जाता है, तो पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज इसमें सॉर्ट ऑफ सारे प्रॉपर्टीज ही है इसमें, हाँ सारे प्रॉपर्टीज ही है। ऑपोजिट साइड्स आपके इक्वल है, पैरेलल भी है, और आपका बस वही एक चीज आ जाता है कि राइट एंगल पे वो बाइसेक्ट कर रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये जो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए आपका 4 आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना दे रहा है, ओके। इट इज फॉर्मिंग 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स, एंड दीज 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करें, इफ यू आर कंसिडरिंग 1 राइट एंगल ट्राइंगल,
in the entire this figure in, तो that would be 1/4 of this rhombus का entire area. तो if you are considering area wise ये rhombus को पूरा जो area है उसका 1/4 है ये वाला BOC या फिर 1/4 है AOB. So this is about it. It's very easy. Rhomboid, और rhomboid तो हम लोगों ने समझ लिया कि it's unequal, like sides lengthwise unequal होते हैं, and it's not necessary कि वो right angle, like non right angle triangle, मतलब non right angled भी हो सकते हैं bisecting point and all. So this is about it. Now आपका आ जाता है rectangle. Rectangle तो most of us know, और all of these shapes actually we know. तो rectangle वही होता है length और breadth. ठीक है, ब्रेथ हो गया. तो ये आपका लेंथ अगर आप पकड़ रहे हो, दिस इज द आपका ब्रेथ. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज इन दिस पर्टिकुलर, अगेन नेम इट एज A, B, C एंड D. यहाँ पे आपका अगेन दिस इज अ प्रॉपर्टीज में आपका पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम है. फिर इनके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं एडजेसेंट साइड्स विच इज परपेंडिकुलर. जैसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखा था हम लोगों ने, तो इनके जो एडजेसेंट साइड है ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे फॉल करता है. लाइक जो ये DA है ये आपका परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है आपका AB पे. आप देख पा रहे हो राइट, ये परपेंडिकुलरली फॉल करता है. तो दिस इज अबाउट इट. तो यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड्स होंगे आर परपेंडिकुलर. ठीक है, टू ईच अदर. टू ईच अदर तो समझ पा रहे हो, टू ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ऑपोजिट साइड्स. तो ऑफ कोर्स इट विल बी इक्वल. तो मतलब ये जो AD है, सॉरी हाँ AD आप पकड़ लीजिए, AD है तो इट विल बी इक्वल टू दिस वन. एंड मतलब दो ब्रेथ जो है, दो ब्रेथ सेम मतलब इक्वल होगा, और जो लेंथ दो है AB और DC ये आपका सेम होगा. रेक्टेंगल में तो बहुत इजी बन जाता है फिर आपका तब अंडरस्टैंडिंग पे के हिसाब से. सो दिस AB और आपका CD इज इक्वल, एंड आपके AD और आपका CB ना, आपका अच्छा BC कंसिडर कीजिए, AD और BC, यहाँ से BC. ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाता है. और ये सब कुछ, ये सारे जो एंगल्स बन रहे हैं ये आपका परपेंडिकुलर पे फॉल कर रहा है. तो मतलब so square is also a kind of rectangle. स्पेशल केस आप बता सकते हो तनु, if you are saying कि square is also a kind of rectangle. Square is not a rectangle because square के सब sides आपके equal हो जाते हैं. We will read, मतलब हम लोग वो जानेंगे. पर sort of मतलब स्पेशल केस में बोल सकते हो आप कि स्पेशल सॉर्ट ऑफ है, थोड़ा सा स्पेशल फॉर्म ऑफ आपका पैरेललोग्राम है, या फिर रेक्टेंगल के कुछ प्रॉपर्टीज से मिलता तो जरूर है, पर स्क्वायर तो रेक्टेंगल नहीं है. नहीं तो मतलब फिर दो डिफरेंट फिगर्स के नाम या फिर दो डिफरेंट वो करने का जरूरत भी नहीं पड़ता. इफ इट वाज मतलब स्क्वायर इज आल्सो वाज आल्सो रेक्टेंगल. या काइंड. तो ये जो आपका ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, लाइक वी हैव सीन द एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो परपेंडिकुलर अगर फॉल कर रहा है तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री में फॉल करता है. ठीक है. तो ये जो एंगल्स बनते हैं आपके परपेंडिकुलर फॉल करने की वजह से, आपके एंगल A, देन एंगल B भी, एंगल C और एंगल D, ये सब आपका 90 डिग्री होता है. ठीक है, दिस इज अबाउट इट. और अभी आ जाता है आपका डायगोनल का जो कॉन्सेप्ट. तो डायगोनल्स आपका हमें लाइक क्योंकि ये
ऑपोजिट साइड से इक्वल है और दिस वन इज ऑल्सो इक्वल, तो ये जो डायगोनल्स बनते हैं, दीज डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर ऑल्सो, ठीक है। मतलब ये जो डायगोनल्स बनेंगे आपके ए सी और आपका बी डी या डी बी, आप जो भी बताइए, तो ये जो डायगोनल्स बनते हैं ए सी इज इक्वल टू आपका बी डी। दिस इज अबाउट इट। और ये जो, क्योंकि ये आपके एक पॉइंट पे बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो बाइसेक्शन इज समथिंग विच कट्स अ पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका जो ये बाइसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो नाउ दिस ए ओ, मतलब हाँ, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, विच इज अगेन, क्योंकि ये मतलब इक्वली है पूरा चीज, दोनों डायगोनल्स, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड आपका फिर ओ बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू ओ डी। ये हो गया आपका दिस रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट। और रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट पे और एक चीज आता है कि इफ एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम अगर आप कंसिडर कर रहे हो एंड एक ट्रायंगल आप कंसिडर कर रहे हो, मतलब जिनका सेम बेस है, ठीक है। आई एम शोइंग यू, ये फिगर से ही आपको दिखेगा। तो वो जो बेस होगा, मतलब दो सिमिलर पैरेलल लाइंस के मिडिल में जो एक बेस होता है, मतलब अगर आप ये वाला बेस कंसिडर कर रहे हो, दिस ए बी को आप अगर आप बेस कंसिडर कर रहे हो, या फिर सी डी को आप अगर आप एक बेस कंसिडर कर रहे हो, आई विल चेंज द कलर सो दैट इट्स विजिबल, बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो अगर आप इसको बेस कंसिडर कर रहे हो या फिर इसको बेस कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, इसको बेस कंसिडर करके अगर आप एक ट्राइंगल को वो कर रहे हो, ठीक है, आप पहले ए सी को बेस कंसिडर कीजिए, बेस इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ए बी को बेस कंसिडर करके अगर आप एक ट्राइंगल को बना रहे हो, दिस ट्राइंगल, ठीक है, तो ये ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल का एरिया इज आपका हाफ है, ये पूरा पर्टिकुलर पूरा रेक्टेंगल के एरिया के हिसाब से। तो वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि ये जो पूरा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा विच विल बी ट्वाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो येलो पार्ट में कर रही हूँ, ये पूरा जो ए सी और बी, ये सी ए सी बी जो आपका ए सी बी बोलो या फिर सी बी ए बोलो, सी बी ए, इज इट विजिबल दिस वन? मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अगर आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो, दिस वन सी बी ए आपका सेम एक बेस फॉर, मतलब एक पैरेलल लाइन को ही आपका बेस कंसिडर कर रहे हैं विच इज ए बी। अभी ये जो सी बी ए होगा, ये आपका ट्वाइस ऑफ द एंटायर, मतलब इनका जो ट्वाइस है, दिस इज ये जो पूरा एरिया है, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे ये लिख सकते हैं कि दिस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इन अदर वर्ड्स, ये जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, एरिया होगा ये ट्राइंगल का, ये आपका हाफ होगा ये पूरा रेक्टेंगल से, आर बिग आर फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। दिस इज अबाउट इट, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और यहाँ पे आपका दो चीज, मतलब रेक्टेंगल, ये रिलेशन सॉर्ट ऑफ हम लोगों ने देखा, राइट। ये वाला न्यूमेरिकल में लगता है, और आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपका डायग्राम से ही समझ में आ जाता है, विच इज 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। एंड आपके दो लेंथ आपका इक्वल होता है, दो ब्रेथ आपके इक्वल होंगे, राइट। एंड ये जो एडजेसेंट साइड्स है वो आपका 90 डिग्री में फॉल कर रहा है, इसके वजह से ही आपका जो साइड्स हो जाते हैं वो आपका मतलब
वो आपका लाइक जो एडजेसेंट साइड्स है वो परपेंडिकुलर में फॉल कर रहा है, इसकी वजह से आपका ये जो एंगल बनते हैं परपेंडिकुलर फॉल करने की वजह से वो आपका 90 डिग्री फॉल कर रहा है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, राइट। एंड ये जो बाइसेक्टर है ये अगेन दोनों को हाफ्स में बांटता है, मतलब ए ओ और ओ सी इक्वल हो जाता है यहाँ पे। और क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, एंड जो बाइसेक्ट करेंगे वो भी सारे इक्वली हो जाएंगे फिर, ठीक है। दिस इज अबाउट इट। बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा मतलब इजी है, इजी तो बहुत ही है, मतलब पूरा ट्रायंगल अगर आप देख रहे हो और उनका ही मतलब ट्रायंगल का कोई एक पैरेलल साइड आप कंसिडर कर रहे हो और उसके हिसाब से अगर आप एक ट्रायंगल को बना रहे हो, लाइक उसके हिसाब से वी आर यू आर लाइक जॉइनिंग द एंटायर ट्रायंगल, मतलब ऑपोजिट साइड में वो जो डायगोनल है उसके उसको कंसिडर करके एक ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हो, वो ट्रायंगल आपका पूरा रेक्टेंगल का हाफ होगा, ऑफ कोर्स इट वुड बी हाफ, तो यहाँ से डायग्राम से भी आपको समझ आ रहा है। सो नाउ विल मूव ऑन टू स्क्वायर। सो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर इज अगेन इजी, और स्क्वायर में तो मतलब ज्यादा कुछ है ही नहीं, स्क्वायर तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे स्क्वायर को। स्क्वायर में सब एक होता है, मतलब सब जो है इसका ए ए ए, इसका जो साइड्स होंगे, साइड्स ए इज इक्वल टू साइड्स, ठीक है, ये सब इक्वल होंगे। तो नाउ लेट्स नेम इट एज ए बी सी डी अगेन। तो नाउ what happens is again this is also a parallelogram, ठीक है, all sides equal, again false perpendicular, I'm just writing false perpendicular, ठीक है। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है मतलब अगेन दिस विल बी अगेन आपका 90-90 सब कुछ, ठीक है। देन आपका ये ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं सारे इक्वल होते हैं, मतलब आपका ए बी इज इक्वल टू आपका बी सी विल बी इक्वल टू डी सी विच इज इक्वल टू डी ए, ये सब इक्वल होता है, और यहाँ पे मैंने नाम दिया है तो लिख देते हैं ए, ठीक है। ये सब आपका इक्वल होता है, can name it again as A, and अभी इनका diagonals पे आ जाते हैं। again the diagonals will be of equal length, ये जो diagonals होंगे diagonals will be of equal length, ठीक है। diagonal again जो point पे कट कर रहा है वो आपका 90 फॉर्मेशन होता है, जो बाइसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे diagonals इक्वल है, तो नाम बता देते ए सी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। अभी क्या होता है, ये डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है ये बाइसेक्ट करेगा आपका राइट एंगल पे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, और ये क्यों, जस्ट बिकॉज इट डज दैट, तो यहाँ से और एक प्रॉपर्टी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी विल सी इट राइट नाउ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये वाला जो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, वी विल ऑब्जर्व इट कि क्या होता है। आप यहाँ पे देखिए कि ये भी 90 है, ठीक है, और ये भी 90 था। ये जो डायगोनल आपका वर्टिसेस को भी बाइसेक्ट, द वर्टिसेस के जो एंगल्स थे, मतलब ये जो एंगल बी, एंगल डी, एंगल ए और एंगल सी थे, इनको भी एग्जैक्टली मतलब एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करा, राइट। ये वाला जो मतलब डायगोनल्स है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये अगर एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम कर रहा है, तो ये आपका 45 और 45 बन जा रहा है अगर एग्जैक्टली इसको मतलब कट कर दे रहा है। तो सिमिलर वे में ये भी 45 और 45 बन जा रहा है, ठीक है। अरे 45, हाँ, और 45, ठीक है। सिमिलर वे में ये भी और ये वाला भी सेम हो रहा है सबके साथ। तो बहुत जब हम लोग पढ़ रहे थे
ट्रायंगल्स, हाँ, तो ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन के टाइम में वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, राइट? एक इक्विलैटरल था, एक आइसोसेलेस था, एक स्केलिन था। स्केलिन में तो क्या था कि कुछ भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है, और आपका इक्विवेलेंट में सब कुछ इक्वल होता है। और आइसोसेलेस ही एकमात्र ऐसा ट्रायंगल था जिसमें आपका दो साइड्स और ऑपोजिट के जो दो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 45-45 आपका इक्वल हो गया। और क्योंकि ये दो आप देख पा रहे हो, लाइक ये जो अगर आपका बाइसेक्टर है, दिस ए सी इज अ बाइसेक्टर, राइट? ए सी इज आपका डायगोनल और बी डी इज ऑल्सो अ डायगोनल। ये आपका ओ वाले पॉइंट पे ए ओ is also equal to OC, right? And then आपका OB is equal to OD. Just follow the diagram if it's I think it's visible. तो ये जो आपका इक्वल इक्वल बन गए, राइट? तो ये वाला जो साइड है OA, आपका ये भी आपके OB के साथ इक्वल हो जाता है। दिस वन OA, just follow this one, this particular, okay, I'll change it into yellow so that it's visible. OA ये वाला आपका बन जा रहा है इसके साथ, ये दोनों आपका इक्वल बन जा रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स दीज आर ऑल इक्वल, सो दीज थिंग्स विल आल्सो बी इक्वल। ये भी इक्वल है, ठीक है। OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD, ठीक है। तो सिमिलर वे में OB इज आल्सो इक्वल टू दिस OB, OA is equal to OB and OC is equal to OD। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि जस्ट बिकॉज O is equal to OB, तो साइड वाला क्राइटेरिया आपका मिल गया, राइट? और सिमिलर वे में ये जो ऑपोजिट, जो मतलब OA का ऑपोजिट क्या है? एंगल छोटा B। ये जो छोटा वाला मतलब हाफ कर दिया तो छोटा हो गया, तो ये जो B है 45 डिग्री, और ये वाला OB, इनका क्या ऑपोजिट है? ये वाला एंगल ए का जो छोटा मतलब छोटा वाला मतलब डिवाइड करके हाफ जो एंगल बन जा रहा है विच इज 45, तो 45 दिस इज आल्सो इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का I hope everyone remembers isosceles triangle. If anyone doesn't, you can go through the previous lectures, or else you can text me as well. I'll say you the properties. Isosceles triangle का जो properties है, I'm saying it right now as well. इनका दो property है, yes, which is आपका जो opposite sides, आपके sides वाला equal होता है। Just give me a second. Why is it okay? Oh shit. हाँ, तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो प्रॉपर्टी, विच इज OA विच इज इक्वल टू OB, और OA का जो ऑपोजिट एंगल है विच इज B का लाइक हाफ ऑफ B जो है, ठीक है, और OB का जो भी ऑपोजिट है विच इज हाफ ऑफ दिस एंगल, टोटल एंगल A, और दीज बोथ आर इक्वल टू 45, तो दोनों प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि ये आपके चार डिस्टिंक्ट आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल भी यहाँ से फॉर्म हो रहा है। तो वही चीज है, अभी स्क्वायर के ऑब्जर्वेशन से वी अंडरस्टूड कि ये चार आपका डिस्टिंक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल भी फॉर्म करता है, स्क्वायर्स। तो यहाँ से जब जैसे हम लोग पहले वाले लाइक लास्ट डायग्राम पे हम लोग जब देख रहे थे कि वी सॉ दिस वन कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और उसके पहले भी वी सॉ 1/4 ऑफ दिस पर्टिकुलर रोम्बस एंड ऑल, हम लोग देख रहे थे, राइट? ये वाले पार्ट पे कि 1/4 हो जाता है पूरा इसका रोम्बस का एरिया का, ये वाला AOB एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी तो आपका वही हो रहा है, ये स्क्वायर पे भी सेम चीज ही हो रहा है। तो दिस AOB इज ऑल्सो 1/4 एरिया ऑफ दिस एंटायर स्क्वायर। सिमिलर वे में BOC इज ऑल्सो 1/4 मतलब 1/4 एरिया ऑफ द एंटायर स्क्वायर। तो वैसे मतलब सिमिलर हो जाता है फिर, ठीक है। और अभी ये एडजस्टेंट वाला भी बता दिया है मैंने, एडजस्टेंट तो मतलब 90 डिग्री होता है, हाँ, तो हो गया। ये बस स्क्वायर का इतना ही प्रॉपर्टीज है। और
ये सारे प्रॉपर्टीज तो मतलब डायग्राम अगर आप याद रख रहे हो तो यू आर बहुत विविडली आपको याद रहेगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू रिकॉल इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स बहुत इजीली. और ये आइसोसेलेस वाला प्रॉपर्टी तो अगेन इट्स वेरी इजी बिकॉज अगेन डायग्राम पे ही आप ज्यादातर फोकस कर लीजिए. और डायगोनल्स इक्वल है तो उसका बाइसेक्टिंग जो एंगल्स मतलब बाइसेक्टिंग जो एंगल्स होंगे वो भी आपका राइट एंगल पे होता है. एंड देन ये जो जस्ट बिकॉज डायगोनल्स ऑल आर इक्वल तो ये जो बाइसेक्टिंग एक पॉइंट होगा ओ दैट विल ऑल्सो बी इक्विवेलेंट, मतलब उनका जो मिड पॉइंट है, मतलब जो डायगोनल का मिड पॉइंट है ओ विच विल ऑल्सो डिवाइड द डायगोनल इनटू टू हाल्स. ऐसे ही करके तो फिर ये सब कुछ मतलब ओ ए ओ सी सब कुछ इक्वल हो जाता है, ओ बी एंड ओ डी. तो सिमिलर वे में तो आइसोसेलेस तो ये निकल रहा है ऑलमोस्ट, मतलब डायग्राम से ही पूरा निकल जा रहा है. नाउ विल मूव ऑन टू ट्रेपेजियम. ठीक है, ट्रेपेजियम को हम लोग और एक टर्मिनोलॉजी है, ट्रेपेजियम को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइड भी. ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं काफी टाइम. एंड अगेन इट इज अ क्वाड्रिलैटरल. अभी क्या होता है कि ट्रेपेजियम को हम लोग पैरेललोग्राम एज सच मतलब नहीं बोलते क्योंकि काफी सारा चीजें हैं जो कि ये फॉलो नहीं करता है. ठीक है, पैरेललोग्राम के जैसे वी सॉ की इन स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर फॉलोइंग आपका प्रॉपर मतलब पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज. पर ट्रेपेजियम इज अ बेसिक लाइक आप क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. बस एक पेयर पैरेलल होता है. अभी ट्रेपेजियम का डायग्राम देख लेते हैं तो आराम से समझ आ जाएगा. ठीक है, अभी देख पा रहे हो कि ये वाला ट्रेपेजियम है और ये जो ए बी है और आपका सी डी है. ए बी और सी डी ये ही दो वैसे साइड है जो कि आपका इक्वल है, लाइक आपका पैरेलल है बेसिकली. तो जस्ट बिकॉज ये दो पैरेलल है तो दो और जो दो है मतलब ए डी और सी ए सी बी सॉरी ए डी और सी बी ये आपका पैरेलल नहीं है. क्यों नहीं है पैरेलल, तो यहाँ पे नीचे करते ये डायग्राम थोड़ा सा ओमिट कर देंगे क्योंकि जगह नहीं होता है. दिस ए बी और CD is parallel to each other because of course again similar parallel lines के जो concepts थे उसके हिसाब से it's parallel. and ये दो मतलब AD and CB is this two is not parallel because ये अगर आप extend करोगे at some point or the other it will meet. ठीक है, तो एक at some point or the other it will meet each other. so of course so this is about it. तो दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होते. नाउ वी विल सी फर्दर कॉन्सेप्ट्स. जल्दी कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ट्रेपेजियम का चार साइड्स मतलब सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम मतलब ये जो ए बी सी डी है ये सब कुछ 180 डिग्री होता है, सिमिलर टू क्वाड्रिलैटरल का जो भी प्रॉपर्टीज है. ये जो सम होगा sum of angle A, B, C और D ये सब का जो सम होगा ये सबका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360. सिमिलर वे में यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना कि अंदर का जो एडजेसेंट एंगल्स होते थे विच वाज इक्वल टू 180 एंड ऑल. रोम्बस पे हम लोगों ने देखा कि जो एडजेसेंट वाला ए बी और बी सी ऑल ऑफ दीज वो 180 तो वैसे ही आप समझ पा रहे हो कि ये पूरा जो सम होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये सब 360 डिग्री होता है. और ट्रेपेजियम का और एक प्रॉपर्टी है विच इज ये ना आपका एक मिड सेगमेंट थ्योरम आता है ट्रेपेजियम का. इफ यू ज्यादा जरूरत नहीं है मिड सेगमेंट थ्योरम मतलब पूरा टोटलिटी में जानना, बट देन क्या चीज होता है वो आप जान लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ.
कि मतलब डायग्राम वाइज आप देख लीजिए, तो उसके हिसाब से यू कैन आराम से आप वो मतलब आराम से अप्लाई कर सकते हो आप कहीं पे भी। तो क्या होता है, पहले इंग्लिश में बता देते हैं कि अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज हाफ, ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नॉन पैरेलल साइड्स की जो मिड पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू एंड वी, इनको अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ये जो होता है, ये जो मिड पॉइंट होगा नॉन पैरेलल साइड्स के, the line that is joining the midpoint of the non-parallel side is half of the square of the lengths parallel to this मतलब ये जो दो parallels है इसके half होते हैं, this one, okay, square of this, like ये जो दो का sum होगा उसका half होगा this one. This is about it. This is the mid segment theorem. और ज्यादा कुछ मतलब है नहीं इसमें। और यहाँ पे एक चीज हम लोग और एक चीज है, ये डायगोनल्स अगर बना रहे हैं, जो कि बनाएंगे ऑफ कोर्स, ये जो डायगोनल्स है, लेट मी omit the mid segment, ठीक है। अभी ये जो डायगोनल्स बना रहे हैं, which is you can see as AC and BD, right? AC and BD. So this AC again similar to other properties जो कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक. So AC का square plus BD का square will be equal to BC का square plus AD का square, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आ जाता है, क्योंकि ये सिमिलर मतलब दो साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से और एक पार्ट आ जाता है विच इज 2 ऑफ ABCD। इतना जान के रखना भी फाइन, मतलब क्योंकि इतना ही लगता है न्यूमेरिकल में। इसका एक बड़ा सा मतलब प्रूफ भी आता है, ठीक है। इफ यू वांट मी टू डिस्कस द प्रूफ, you can text me. I'll do it in the next class, ठीक है। I can absolutely kind of discuss about the entire proof जो है, तो आप समझ पाओगे ये क्यों हो रहा है। बट इतना भी याद रखना, मतलब it's more than enough and it's very easy as well कि जो पैरेलल साइड्स हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कि मतलब ये जो पैरेलल साइड्स थे उनके सब का स्क्वायर, उनका सब like sum of all those sides, वो आपका इक्विवेलेंट हो जा रहा था आपका डायगोनल्स के स्क्वायर के साथ, लाइक सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। ये हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। तो बस ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम में क्या होता है, वही कि बस उनके जो दो साइड्स होंगे उनके स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB और CD का होता है। दैट्स अबाउट इट। आई होप इट्स क्लियर अभी तक के लिए। एंड ये बेसिक जो चीज है ये क्यों हो रहा है, मतलब एक छोटा सा ही बता दे रही हूँ। एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रूफ, I'll do that in the next class. You can just mention me, कोई एक टेक्स्ट कर देना, you can text it in the basic foundation group as well. तो और एक चीज होता है which is ये आपका जो एक पॉइंट बाइसेक्ट, मतलब ये जो डायगोनल जिस पॉइंट पे O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, O is the bisecting point, PT for point। तो ये जो O पॉइंट है which is AO by OC is equal to BO by OD। Yeah, right. So this is about it. This is also equal. So यहाँ से हम लोग consider करके we can find out this particular proof. But इतना भी याद रखना, it's more than enough because this is what it will be required. I hope it's clear. So next class, only one more class will be kind of conducted for this this particular chapter, understanding elementary shapes. Though whatever I have taught in this particular in the entire geometry wala lecture, so what I did was I tried to cover NCERT as well as जो कि UPSC या फिर जो भी PCS एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, मतलब शेप्स एंड साइज को, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स और उसको कंसिडर करके आई हैव ट्राइड टू मर्ज बोथ ऑफ दोज थिंग्स। प्रोबेबली
probably I have not seen like I have not went through recently 8 और 9th के books. शायद ये सारे concepts आपके 11th 12th के book में या फिर 8 9th के book में है ये सारे concepts. तो we have covered it beforehand only because नहीं तो फिर वो breakage आ जाता है. तो we are trying to cover in a totality एक particular topic को वैसे move करने की कोशिश कर रहे हैं. तो I think it's clear अभी तक जो भी मैंने बताया. एंड कुछ चीजें हैं जैसे रियल लाइफ एग्जांपल सर बताते हैं लाइक तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर फ्लावर पॉट देखोगे या फिर इफ यू आर कंसिडरिंग पॉपकॉर्न का वो मतलब एक पॉपकॉर्न का बकेट, दो दीज फिगर्स आर बेसिकली आपका 3D फिगर्स. अगर आप एक पॉपकॉर्न का वो देख रहे हो तो दिस इज नॉट अ पॉपकॉर्न वो. Just give me a second. Okay, I'll just do it. अगर आप एक पॉपकॉर्न का क्या मतलब बकेट कंसिडर कर रहे हो इन अ मूवी हॉल और समथिंग, तो ये जो पॉपकॉर्न का बकेट है ये बेसिक ट्रेपेजियम का उल्टा ट्रेपेजियम का एक काइंड ऑफ थ्योरी में बना है. दो इट्स अ 3D फिगर, ठीक है, दो इट विल हैव इट्स ओन डेप्थ, इनका एक ओन डेप्थ होगा, आपका लेंथ है, ब्रेथ है. तो इट्स अ 3D figure and we will discuss 3D figure in the next class and we'll discuss circles and some concepts, कुछ different concepts of circles in the next class. तो ये इसका तो आपको समझ आ रहा है. एक x axis भी है पॉपकॉर्न का, पॉपकॉर्न के बकेट का, एक y axis भी है और आपका एक z axis भी है, ठीक है. तो ये एक 3D फिगर है, दो इट्स अ 3D फिगर बट बेसिक जो आपका एक शेप अगर आप 2D में इसको कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे ये डायग्राम में अभी तो ये डायग्राम जब हम बनाए तो ये आपका 2D फिगर के फॉर्मेट में मैंने डायग्राम बनाया, राइट. इट्स नॉट लाइक 3D एज सच बना नहीं है. तो ये वाला जो डायग्राम के फॉर्मेट में बनाया ये ट्रेपेजियम का एक आपका शेप है. तो इट्स उल्टा ट्रेपेजियम, यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको उल्टा कर देंगे बकेट को तो ये ट्रेपेजियम का एक शेप बन जाता है. सिमिलर वे में फ्लावर पॉट अगर आप कंसिडर कर रहे हो, और ये सब कुछ आपका बेसिक आर्किटेक्चरल डिजाइन पे भी यूज होता है. इन एनीथिंग लाइक इन डे टू डे लाइफ, इफ यू आर सीइंग पैरेललोग्राम्स के जो लॉज है वी यूज इट इन एनीथिंग. मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इफ यू आर प्लेइंग बास्केटबॉल यू आर यूजिंग इट. यू आर अगर आप एक ड्रिबल भी कर रहे हो, बास्केटबॉल में ड्रिबल होता है ना, जो मतलब आप बाउंस करवा रहे हो बास्केटबॉल को जो कि पे ग्राउंड पे हिट कर रहा है, which is perpendicularly ground पे hit कर रहा है, which is also a funda, मतलब which is also a law of parallelogram. Similar way में अगर आप जिम में weight lifting कर रहे हो, right, जो यश पढ़ा रहा था, and then gravity का जो concepts है, all of these things, everything is interrelated to each other. So that's about it. Even जब हम लोग like previously when warriors used to shot an arrow, मतलब एक bow and arrow से जब वो shot करते थे diagonally जाता था arrow कभी कभी. They used to have their own techniques to move it diagonally, perpendicular, and according to the focus factor, मतलब जो जिसको aim करना है, जिस चीज को हिट करना है उस चीज के हिसाब से दे यूज टू काइंड ऑफ थ्रो द एरो अकॉर्डिंगली. तो सिमिलर वे में हर किसी चीज में आपका पैरेललोग्राम्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. अगेन जैसे मैंने बताया कि काइट वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे थे कि काइट काफी टाइम की काइट रोम्बस की तरह, आप अगर रोम्बस को एक एंगल से देख रहे हो तो इट्स सॉर्ट ऑफ काइट. पर एक चीज हम लोग को याद रखना पड़ता है कि एवरी काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है. हर काइट पैरेललोग्राम नहीं होंगे. एंड क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं काइट के वो नेसेसरीली ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो ऑपोजिट साइड्स आपके इक्वल होगा, ठीक है, वो पैरेलल होंगे, मतलब पैरेलल होंगे एक दूसरे से. सो दैट इज अबाउट इट, ठीक है. और कोई क्वेश्चन है किसी के पास या एंड वी कैन kind of, or else we can wrap it up or something if you have no questions. Or baki 3D shapes we'll understand in the next class, basic concepts or different portions of those 3D or bucket can be also taken as a example of trapezium. Yes Aanchal, bucket या जो पानी का bucket होता है, right? हाँ, you can also consider if it's हाँ अगर आप bucket पकड़ रहे हो या
also. Bucket can also be considered क्योंकि उसका base का थोड़ा सा smaller होता है और like sidewise base और जो इन्हीं मतलब जो जहां से पानी वो होता है और जो बेस होता है वो दो पैरेलल होते हैं एंड दीज टू आर नॉट पैरेलल द साइड वाइज पैरेलल नहीं रहते so yeah bucket can also be a parallelogram a trapezium ka shape okay great thank you so much guys thank you for attending the class I always think of wrapping class as soon as possible but it always goes a little longer like aaj to 10 minute gaya hai I hope it's clear. I've tried my best. If anyone has any other any more concepts, basic concepts को cover करने के लिए, you can always मतलब ping me up and we can collaborate something for the next class or next to next class we can do something like that. Okay. Thank you so much, guys. Thank you for attending.